very good morning to all my dear friends. I welcome you once again in part 16 of knowledge series on model GST law. Now you might be confused how it is part 16. Part 13 you might remember we have recorded and we have deliberated on the transitional provisions pertaining to job work. Then part 14 was my live lecture recorded at Ahmedabad branch on 17 September 2016. The topic was basics of GST, so we have uploaded that as part 14. And part 15, again a session of Ahmedabad branch on 1st of October 2016. The topic was input tax credit, so we have uploaded that also as part 15 of knowledge series on model GST law. And I assure you that the entire input tax credit we will again cover up in the coming parts of this knowledge series, and that will be a detailed discussion about the input tax credit provisions. So thereby it is part 16 of knowledge series in the model GST law. Now today I have thought to cover up demand and recovery provisions under the model GST law. Now before discussing the provisions pertaining to recovery and demand, I would like to take you back to service tax provisions. Section 73 of the Finance Act 1994. Section 73 deals with the recovery of short payment, non-payment or erroneous refunds. The provisions under the model GST law are also more or less similar to what is provided under section 73 of the Finance Act. तो मैं आपको वहाँ पे एक बार ले जाना चाहता हूँ कि सेक्शन 73 में क्या प्रोविजंस थे सर, कि जहाँ पे शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट या erroneous रिफंड है, वहाँ पे जो अथॉरिटी है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो, द अथॉरिटी हैज़ टू इशू अ शोकॉज नोटिस. और उनके सर लेवल्स हैं कि अगर 1 लाख तक का है तो सुपरिटेंडेंट इशू कर सकता है, 5 लाख तक का है तो एसी इशू कर सकता है, विच इज़ नाउ रिवाइज ऑल्सो. कि अगर 50 लाख तक का है तो एडिशनल इशू कर सकता है, उसके ऊपर है तो कमिश्नर इशू कर सकता है. तो शोकॉज नोटिस जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इशू करते हैं और उसमें पूछते हैं कि साहब आपसे डिमांड क्यों ना की जाए जो शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट या एरोनियस रिफंड है, और उस पर इंटरेस्ट क्यों ना डिमांड की जाए सेक्शन 75 में, एंड पेनल्टी 77, 78 में क्यों ना डिमांड की जाए. I would say more or less, or rather 90%, 95% there is a similarity in the provision under the model GST law also. The section which is applicable is section 51 of the CGST SGST Act of model GST law. Now CGST SGST Act के section 51 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सर. पार्ट A, B, C and D. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आई विल टेल यू कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड सर्टेनली लाइक टू से दैट 95% ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस आर बोरोड फ्रॉम और रादर बोरोड फॉर द प्रोविजंस अंडर मॉडल जीएसटी लॉ. अब वो कैसे, विल टच अपॉन दैट. तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद पार्ट ए ऑफ सेक्शन 51. सेक्शन 51 क्लॉज ए क्या बोलता है. सबसे पहले तो 7 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है. जो पार्ट ए है वो 7 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है. फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है. फर्स्ट सबसेक्शन प्रोवाइड्स वेयर द टैक्स हैज नॉट बीन पेड और इट इज शॉर्ट पेड और एरोनियसली रिफंडेड or where the input tax credit has been wrongly availed. In situations में the proper officer shall issue a show cause notice for the purpose of recovery of that tax which has been paid short or which is not paid or which is erroneously refunded or the credit which is wrongly availed. बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है सर, सेक्शन 51 पार्ट ए में फॉल करने के लिए उसके सब सेक्शन 1 में जो शोकॉज नोटिस है वो उन्हीं सिचुएशंस में इशू होती है जहाँ पे फ्रॉड
का इन्वॉल्वमेंट ना हो. If such short payment or non-payment or erroneous refund or wrong availment of Senvet credit is for or is because of any other reason, that is a reason other than involvement of fraud or any willful misstatement or suppression of facts for the purpose of evading tax, तो ही सबसेक्शन 1 पार्ट ए एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज इट विल गो टू सम अदर पार्ट. तो अगर अपने वापस से एक बार समझने की कोशिश करें कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 ए में क्या प्रोवाइड किया गया है, तो वो ये है कि अगर शॉर्ट पेमेंट हो, नॉन पेमेंट हो, एरोनेस रिफंड हो या रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ सेनवेट क्रेडिट हो, और जहां पे फ्रॉड इन्वॉल्व ना हो, विलफुल मिस स्टेटमेंट इन्वॉल्व ना हो, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व ना हो, तो उस अमाउंट की रिकवरी के लिए प्रॉपर ऑफिसर शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है, जहां वो पूछ सकता है कि आपसे ये शॉर्ट पेड टैक्स या नॉट पेड टैक्स या गलत रिफंड जो इशू किया था वो, या जो आपने सेनवेट क्रेडिट गलत लिया है वो रिकवर क्यों ना किया जाए विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 36 एंड along with the applicable penalties. This is subsection 1 कि शोकॉज नोटिस इशू होगा इन 4 सिचुएशंस में, फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और आपको पूछा जाएगा कि आपसे रिकवरी क्यों ना ली जाए विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. सिमिलर प्रोविजन सेक्शन 73(1) में भी है सर. उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इफ एनीबडी कैन हेल्प मी. द ओनली डिफरेंस इज वहां आपने टाइम लिमिट देखा है. सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ फ्यू मंथ्स और 5 years. प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 का बोलता है 5 years एक्सटेंडेड पीरियड, और सबसेक्शन 1 नॉर्मल प्रोविजंस बोलता है 30 months. तो सब उस पीरियड के अंदर शोकॉज नोटिस देना जरूरी था रिलेवेंट डेट की. यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. दिस इज द डिफरेंस नंबर 1 सेक्शन 73 में और सेक्शन 51 में. पहला डिफरेंस कि यहाँ पे शोकॉज नोटिस इशू करने के लिए कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है. अब सर आगे चलते हैं. सबसेक्शन 2 ऑफ 51A. 51 पार्ट ए का सबसेक्शन 2 ऐसा प्रोवाइड करता है कि अगर एक बार आपका शोकॉज नोटिस किसी पीरियड के लिए हो गया इशू और दूसरे पीरियड के लिए सेम फैक्ट्स पे वापस से शोकॉज नोटिस इशू करना है, then the proper officer can simply issue an statement wherein he will provide all the relevant calculations and such a statement will be regarded as a show-cause notice. I'm repeating, सबसेक्शन 2 ऐसा प्रोवाइड करता है कि जहां पे भी सबसेक्शन 1 में शोकॉज नोटिस इशू हो गया है, उसके अलावा के किसी पीरियड के लिए अगर शोकॉज नोटिस वापस इशू करना है एंड द ग्राउंड्स to be relied upon are same as it was in show-cause notice already issued under subsection 1, then he can issue a statement wherein he can provide all the calculations part. अगर वो डिटेल शोकॉज नहीं है, फैक्ट्स नहीं बताए गए, केवल कैलकुलेशन का स्टेटमेंट दिया गया, तो वो स्टेटमेंट भी शोकॉज नोटिस की तरह से माना जाएगा. दिस इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 51 पार्ट ए. नाउ सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि इफ बिफोर द इश्यूएंस ऑफ शोकॉज नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ही मीन्स कि अगर शोकॉज नोटिस आपको मिले या डिपार्टमेंट इशू करे सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में, जो हमने ऊपर देखा है, उसके पहले आप जितना भी शॉर्ट पेमेंट आपने किया है या नॉन पेमेंट किया है या गलत रिफंड लिया है या गलत क्रेडिट लिया है, अगर उसका पेमेंट डिपार्टमेंट को कर देते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 36 और टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट कर देते हैं इन राइटिंग, देन द प्रॉपर ऑफिसर विल नॉट इशू शोकॉज नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2. क्लियर सर? चलो मैं दोबारा से टच अपॉन करता हूं. सबसेक्शन 3 में जहां पे भी
आपने टैक्स का पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको शोकोज नोटिस से मिलने से पहले अगर आपने कर दिया है और राइटिंग में इंटीमेट कर दिया प्रॉपर ऑफिसर को, तो आपके ऊपर शोकोज नोटिस इशू नहीं किया जाएगा. देयर विल बी नो इशुएंस ऑफ शोकोज नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 51 पार्ट ए. दिस इज सबसेक्शन 3. अब देखते हैं सर सबसेक्शन 4. तो सब सेक्शन 51 कैपिटल ए का सबसेक्शन 4 क्या प्रोवाइड करता है? ये ऐसा प्रोवाइड करता है कि अगर सबसेक्शन 3 जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जहाँ पे शोकॉज नोटिस मिलने से पहले आपने टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भर दिया और प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट कर दिया, तो आपको शोकॉज नोटिस नहीं मिलेगा. तो उसी की कंटिन्यूएशन में बोलता है कि सबसेक्शन 3 में जो भी आपने पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट किया है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं था या अगेन वो फर्दर शॉर्ट था, आपने सपोज 5 लाख रुपए पेमेंट किया विद इंटरेस्ट और इंटीमेट कर दिया, लेकिन ऑफिसर को लगता है कि वो 6 लाख था, तो इन दैट सिचुएशन फॉर द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज ही कैन अगेन इशू अ शोकॉज नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. तो सबसेक्शन 1 में वो वापस से आपको नोटिस भेज सकता है जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके लिए. अब आते हैं सबसेक्शन 5 पे. सबसेक्शन 5 प्रोवाइड्स कि जहां पे भी सबसेक्शन 1 में किसी को शोकॉज नोटिस मिला है या सबसेक्शन 2 में शोकॉज नोटिस मिला है, वो टैक्स का पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अगर विद इन 30 days ऑफ द इशुएंस ऑफ शोकॉज नोटिस कर देता है, देन देयर विल बी नो पेनल्टी इम्पोज्ड. आई एम रिपीटिंग, इफ एनीवन रिसीव्स अ शोकॉज नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 or subsection 2 of section 51A and he pays the same, that is the tax amount along with interest, then no penalty will be imposed on him. तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी सर. 30 दिन के अंदर शोकॉज नोटिस के मिलने के 30 दिन के अंदर अगर वो टैक्स का पेमेंट इंटरेस्ट के साथ कर देता है तो उसको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी. सबसेक्शन 6 प्रोवाइड्स कि जो प्रॉपर ऑफिसर है ही शैल इशू एन ऑर्डर और ही शैल डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी एंड डिमांड फॉर द सेम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड द पेनल्टी विच शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर. तो अगर सपोज 90,000 का अगर टैक्स का डिमांड है तो 10% ऑफ दैट विच इज 9,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, तो 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगाएगा. और अगर 2 lakhs का डिमांड है तो 20,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, दैट इज 20,000 का डिमांड लगाएगा, का पेनल्टी लगाएगा, सॉरी. सो सबसेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड डिमांड फॉर द सेम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विच शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर, और वो उस बंदे को भरनी पड़ेगी. सो दिस इज सबसेक्शन 6 इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट द शोकॉज नोटिस. नाउ लेट अस गो टू द लास्ट सबसेक्शन विच इज सबसेक्शन 7. सबसेक्शन 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है सेक्शन 73 जिसकी हम बात कर रहे थे फिनेंस एक्ट सर्विस टैक्स के लिए, उसमें ये प्रोविजंस नहीं है. एक सबसेक्शन है 4B ऑफ सेक्शन 73 जिसमें ऐसा बोला है कि शोकॉज नोटिस अगर नॉर्मल पीरियड की है तो उसका ऑर्डर 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, और अगर एक्सटेंडेड पीरियड की है तो उसका ऑर्डर जो है वो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए. बट देयर इज अ कंडीशन ऑल्सो दैट इफ इट इज पॉसिबल टू डू सो, तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट विल नेवर बी पॉसिबल टू डू सो, एंड देयर बाई कभी भी 6 महीने और 1 साल के अंदर आपको ऑर्डर दिखेगा नहीं शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट में. लेकिन यहाँ सबसेक्शन 7 में बहुत क्लियरली प्रोवाइड किया गया है कि 51 सेक्शन पार्ट ए यानी 51 कैपिटल ए के अंदर जो भी शोकॉज नोटिस सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में इशू हैं, उनका ऑर्डर जो सबसेक्शन 6 में अभी हमने डिस्कस किया वो विद इन 3 years हो जाना चाहिए. विद इन 3 years ऑफ व्हाट? विद इन 3 years ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. तो सब एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है फाइलिंग की उससे 3 साल के अंदर, या एक्चुअल रिटर्न जो आपने फाइल किया उससे 3 साल, ये आपकी डेट्स रहेंगी. विद इन दैट डेट यू विल हैव टू फाइल
or you will have to pass an order under subsection 6 of section 51 capital A. एंड इन दोनों डेट्स में टाइम बारिंग क्या है, इन दोनों डेट्स में जो डेट पहले आएगी, बाय दैट डेट द ऑर्डर शुड बी इशूड. Subsection 7, again I am repeating, it says that the proper officer shall issue an order under subsection 6 within 3 years from the date which is due date or actual date, whichever is earlier, for filing of annual return for the year to which the tax not paid or short paid or input tax wrongly credit availed or utilized, or as the case may be within 3 years from the date of erroneous refund. तो जिस दिन रिफंड मिला उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर देना पड़ेगा. जिस दिन एरोनियस रिफंड का हुआ उस दिन से 3 साल. और अगर ये 3 सिचुएशंस है, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट या रॉन्ग यूटिलाइजेशन एंड अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, तो उस सिचुएशन में इन दोनों डेट्स में जो अर्लियर डेट्स होगी, पहली डेट क्या है सर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. दूसरी डेट क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी उस ईयर की, जिस ईयर के से पर्टेनिंग वो टैक्स का शॉर्ट पेमेंट है, उसके 3 साल के अंदर अंदर यू विल हैव टू इशू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6. अगर एग्जांपल से समझना है तो सपोज 2015-16 का एनुअल रिटर्न का फाइलिंग होगा 31 दिसंबर 2016 लास्ट डेट. तो 31 दिसंबर 2016 से 3 इयर्स. अगर शॉर्ट पेमेंट हम बात कर रहे हैं 15-16 ईयर के बीच के ईयर में शॉर्ट पेमेंट हुआ, तो उस ईयर का नोटिस जो है 31 दिसंबर 2016 से लेके 3 साल के अंदर अंदर इशू हो सकता है. आई एम सॉरी, आई हैव टोल्ड नोटिस, इट इज ऑर्डर. ऑर्डर अंडर सेक्शन 51 कैपिटल ए. ऑर्डर कैन बी इशूड विद इन 3 years फ्रॉम 31 दिसंबर 2016 इन द एग्जाम्पल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. तो सर अभी क्लियर है. एक बार सातों सबसेक्शन को वापस से शॉर्ट में टच अपॉन करते हैं. कैपिटल ए यानी पार्ट ए ऑफ सेक्शन 51 के 7 सबसेक्शन. सबसेक्शन 1 बोलता है कि नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनियस रिफंड और रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ सेलवेट क्रेडिट में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा. सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर उसने एक बार शो कॉज नोटिस सबसेक्शन 1 में दे दिया तो उसके सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए या किसी दूसरे पीरियड के लिए अगर सेम फैक्ट्स पे वो रिलाई करके शोकॉज नोटिस देना चाहता है तो स्टेटमेंट भी अगर वो दे रहा है कैलकुलेशंस के, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज अ शोकॉज नोटिस. सबसेक्शन 3 बोलता है कि शोकॉज नोटिस मिलने से पहले, चाहे वो सबसेक्शन 1 हो या सबसेक्शन 2 हो, उसके मिलने से पहले अगर पूरा टैक्स पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कर देते हैं और प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट कर देते हैं, देन द शोकॉज नोटिस विल नॉट बी इशूड इन हिज फेवर बाय द डिपार्टमेंट. सबसेक्शन 4 बोलता है कि आपने भले ही सबसेक्शन 3 में अपने आप कैलकुलेट करके इंटरेस्ट के साथ पैसा भर दिया है, लेकिन अगर ऑफिसर को लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि आपने वो शॉर्ट पेमेंट किया है अभी भी, तो उस शॉर्ट पेमेंट या उस डिफरेंशियल अमाउंट के लिए वो आपको शोकॉज नोटिस दे सकता है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 कैपिटल ए. सबसेक्शन 5 ऐसा प्रोवाइड करता है कि जहां पे सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में आपको नोटिस मिल चुका है, वहां पे अगर आप उसके मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप टैक्स की पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कर देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं रहेगी. सबसेक्शन 6 बोलता है कि आपके फैक्ट्स और प्रेजेंटेशंस को ध्यान में रख के प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर पास करना है, डिटरमाइन करना है आपका टैक्स लायबिलिटी और पेनल्टी विच कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर. इतनी वो पेनल्टी लगा सकता है, इधर 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर. वो पेनल्टी लगा के ऑर्डर पास करेगा. सबसेक्शन 7 बोलता है कि ऑर्डर वो कब पास करेगा. तो ऑर्डर 3 सिचुएशंस यानी शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट और रॉन्ग यूटिलाइजेशन और अवेलमेंट ऑफ सेलवेट क्रेडिट के केस में 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, और इन केस ऑफ एरोनियस रिफंड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड. सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज सबसेक्शन or rather section 51 capital A of the model GST law, which discusses about the issuance of show cause notice and the demand and the collection thereof in those cases where there is short payment, non-payment, erroneous refund or wrong availment or utilization of served credit, but
देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और विलफुल मिस स्टेटमेंट। अब सर आगे बढ़ते हैं पार्ट बी, दैट इज सेक्शन 51 कैपिटल बी। व्हाट डज दैट प्रोवाइड? तो सर मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूंगा कि बाकी सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम हैं, एक को छोड़ के, जो ये बोलता है कि ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होगा वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो जहां पे भी फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है वहां कैपिटल ए सेक्शन 51, जहां फ्रॉड इन्वॉल्व है वहां कैपिटल बी सेक्शन 51। तो सर अब टेक्निकल प्रोविजंस अगर देखें सेक्शन 51 कैपिटल बी के, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पे भी फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होगा वहां पे कैपिटल बी सेक्शन 51 लगेगा। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 इज सिमिलर टू कैपिटल ए सेक्शन 51 कि अगर नॉन पेमेंट हो, शॉर्ट पेमेंट हो, एरोनियस रिफंड हो या रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेनवेट क्रेडिट हो, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा और पूछेगा कि साहब आपसे डिमांड क्यों ना की जाए टैक्स की, जो शॉर्ट पे किया आपने या नॉन पे किया, या फिर आपने गलत रिफंड लिया या आपने गलत सेनवेट क्रेडिट लिया, along with interest and the penalty, provided कि सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड हो। दिस इज सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 अगेन सिमिलर टू कैपिटल ए सेक्शन 51 कि अगर सबसेक्शन 1 में एक बार शोकॉज नोटिस इशू हो गया है और सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए या किसी और पीरियड के लिए शोकॉज नोटिस इशू करना है और केवल एक स्टेटमेंट इशू किया गया है कैलकुलेशंस का, then that statement will be regarded as the show cause notice itself। सर ये प्रोविजंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। सबसेक्शन 3 अगेन इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट ए ऑफ सेक्शन 51। वो यही प्रोवाइड करता है कि अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के शो कॉज नोटिस मिलने से पहले आप टैक्स का पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड 15% ऑफ पेनल्टी, 15% ऑफ टैक्स अमाउंट वो आज एज अ पेनल्टी भर देते हैं और इंटीमेशन दे देते हैं प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो इंटीमेशन मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू नहीं करेगा। आई एम रिपीटिंग, सबसेक्शन 3 जिसमें डिफरेंस है, कैपिटल ए सेक्शन 51 था टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 36, यहां कैपिटल बी सब सेक्शन 51 के सबसेक्शन 3 के प्रोविजन है टैक्स along with interest and 15% of that tax amount as a penalty। इतना आप भर देते हो और इंटीमेट कर देते हो प्रॉपर ऑफिसर को, तो आपसे पेनल्टी, आपको शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा। नाउ सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 बोलता है, सिमिलर है जो सेक्शन 51 ए का सबसेक्शन 4 था, कि अगर सबसेक्शन 3 में आपने जो अमाउंट भरा और इंटीमेट किया प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि वो अमाउंट अभी भी शॉर्ट है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके लिए वो शो कॉज नोटिस सबसेक्शन 1 में इशू कर सकता है। नाउ सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 बोलता है शो कॉज नोटिस मिलने के 30 डेज के अंदर अगर आप टैक्स, इंटरेस्ट एंड 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स एज अ पेनल्टी भर देते हैं, तो आपका शो कॉज नोटिस वहां पे ड्रॉप हो जाता है। The case will be settled, it will be closed, deemed to be concluded। I am repeating, subsection 5, subsection 5 of section 51B and subsection 5 of section 51A में इतना डिफरेंस है कि A ऐसा प्रोवाइड करता था टैक्स, इंटरेस्ट अगर आप भर देते 30 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस मिलने के तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये ऐसा बोलता है 51B के सबसेक्शन 5 टैक्स, इंटरेस्ट एंड 25% ऑफ टैक्स अमाउंट एज अ पेनल्टी, इतना भर देते हो तो आपको शो कॉज नोटिस या आपका जो केस था वो कंक्लूडेड माना जाएगा। नाउ सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर आपके रिप्रेजेंटेशंस के बेसिस पे डिटरमाइन करेगा टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट और पेनल्टी जो ड्यू है। सिमिलर प्रोविजंस वहां पे भी थे 51A में कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपके रिप्रेजेंटेशन सुन के
समझ के डिटरमाइन करेगा टैक्स की अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट और 10% और 10,000 विच एवर इज हायर पेनल्टी की अमाउंट. यहाँ पे ऐसा है, टैक्स की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट और पेनल्टी की अमाउंट जो एप्लीकेबल होगी वो, और उस बेसिस पे सबसेक्शन 6 में वो ऑर्डर पास करेगा. सबसेक्शन 7 ऑफ 51A आप याद करें, उसके अंदर 3 साल का टाइम लिमिट था. वो 3 साल का टाइम लिमिट यहाँ पे 5 ईयर्स का टाइम लिमिट हो जाएगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज प्रोविजंस आर सेम. नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट या रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ सेनवेट क्रेडिट के केस में 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम लिमिट है. और एरोनियस रिफंड के केस में 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड, एरोनियस रिफंड, दैट विल बी द टाइम बारिंग. इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर उसको ऑर्डर देना पड़ेगा. मीन्स अगर जैसे हमने एग्जांपल लिया था 15-16 का 31 दिसंबर एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है, तो 31 दिसंबर से लेके 5 साल, और अगर रिटर्न मैंने पहले भर दिया 30 नवंबर को भर दिया तो 30 नवंबर से 5 साल. दैट विल बी द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 51 कैपिटल बी. सबसेक्शन 8 जो इसमें नया है वो क्या प्रोवाइड करता है सर? वो ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपको जिस दिन ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उस कम्युनिकेशन के दिन से 30 डेज के अंदर अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट और 50% ऑफ टैक्स अमाउंट अगर भर देते हैं एज अ पेनल्टी, तो आपका केस कंक्लूड हो जाएगा. इट मीन्स व्हाट? अगर आप समरी बने करें तो पहला है कि अगर आपको शोकोज ही नहीं चाहिए तो टैक्स, इंटरेस्ट और 15% भर दीजिए. अगर शोकोज मिल जाता है और आपको कंक्लूड कराना है उस केस को तो टैक्स, इंटरेस्ट और 25% पेनल्टी भर दीजिए. और अगर आप ये 30 दिन के अंदर नहीं भर पाते हैं तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा सबसेक्शन 6 में. आप जिस दिन आपको ऑर्डर मिला उसके 30 दिन के अंदर अगर आप टैक्स, इंटरेस्ट और 50% भर देते हैं तो आपका केस कंक्लूड हो जाएगा. और 30 दिन में नहीं भरते हैं तो 100% पेनल्टी जो लगेगी, जो प्रोविजंस में है वो लगेगी. तो सर दिस वाज कैपिटल बी सेक्शन 51. कैपिटल ए सब सेक्शन 51 में जहाँ पे फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन नहीं है वो सिचुएशंस थी. पेनल्टीज वहाँ पे केवल 10% और 10,000 विच एवर इज हायर थी. कैपिटल बी सेक्शन 51 में पेनल्टीज 15% से स्टार्ट होती है, इट गोज अप टू 100%. लेकिन अगर आप 30 दिन शोकस नोटिस के अंदर भर देते हैं तो 25% लगेगी, और ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर भर देते हैं तो 50% लगेगी. दिस इज सेक्शन 51B ऑफ सेक्शन of model GST law. Now let us proceed to capital C, that is section 51C of model GST law. Sub capital C of section 51 pertains to general provisions in relation to the demand of tax. अभी तक हमने पार्ट ए और पार्ट बी में यानी 51A और 51B में जो डिस्कस किया, इट वाज पर्टेनिंग टू द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी and demanding the same. Now it provides for this section, that is section 51 clause C, or rather capital C provides for the general provisions pertaining to the demand of tax. तो उसमें सबसेक्शन 1 क्या है सर? सबसे पहले तो ये समझ लें कि 51C जो है वो 10 सबसेक्शन है उसमें. तो सबसेक्शन 1 क्या है? सबसेक्शन 1 ऐसा बोलता है कि जहाँ पे भी कोई नोटिस सर्व हुआ है या ऑर्डर इश्यू हुआ है और वो स्टे हो गया हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से, तो जो स्टे का पीरियड है दैट पीरियड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ 51A और 51B, दैट इज विद इन 3 ईयर्स और विद इन 5 ईयर्स. तो 3 साल और 5 साल के पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए जो भी स्टे का पीरियड है, नोटिस के लिए स्टे हुआ है या फिर ऑर्डर को स्टे मिला है, वो पीरियड आप इंक्लूड नहीं करेंगे. दैट पीरियड शुड बी एक्सक्लूडेड सो एज टू कैलकुलेट, और वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम लिमिट ऑफ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 51C, it provides that if the appellate authority believes that the notice which has been issued under 51B subsection 1 or subsection 2
इज नॉट गुड. इट मीन्स आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि वो फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, लेकिन उसको इस्टेब्लिश नहीं किया. अगर वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो अपीलेट अथॉरिटी ये बोल सकती है कि दिस इज नॉट इस्टेब्लिश, देयर बाई द पीरियड ऑफ 5 years कैनॉट बी टेकन. बट प्रॉपर ऑफिसर वहां पे भी empowered रहेगा that he can determine the tax payable by such person for the period of 3 years. If not 5 years, then at least for 3 years he can certainly determine. तो इन शॉर्ट अगर सबसेक्शन 2 के प्रोविजन समझे तो अपीलेट अथॉरिटी को या ट्रिब्यूनल को या कोर्ट को अगर ये कंक्लूड कर लिया उन लोगों ने, इफ दे हैव कंक्लूडेड दैट जो नोटिस सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 51B में इशू हुआ था वो नोटिस प्रॉपर नहीं था. क्यों? क्योंकि फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है. तो उस सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर 3 साल का टैक्स डिटरमाइन कर सकता है. एंड he will follow, or it will be presumed that the show cause notice, in spite of being issued under subsection 1 or subsection 2 of 51B, will be termed as or deemed as issued under subsection 1 of or subsection 2 of section 51A. तो 51B में जो शो कोज नोटिस इशू हुआ है सबसेक्शन 1 और 2 में, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो नोटिस सबसेक्शन 1 और 2 51A में इशू हुए हैं. नाउ सबसेक्शन 3 प्रोवाइड करता है नेचुरल जस्टिस, कि जहां पे भी जो डिफेंस कर रहा है, द असेसी हैज रिप्लाइड इन राइटिंग एंड ही हैज आस्क्ड फॉर द पर्सनल हियरिंग और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो वो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए. नेक्स्ट है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को सफिशिएंट कॉज बताए जाए कि वो पर्सनल हियरिंग पे क्यों नहीं आ पा रहा, and if the causes are sufficient and reasonable, then he may allow the adjournment also. But adjournment cannot be given for more than 3 times for one particular case. यानी एक बार आपका शोकॉज नोटिस आया तो उस शोकॉज नोटिस में रीजनेबल बेसिस पे, रीजनेबल कॉजेज के बेसिस पे आपको 3 एडजॉर्नमेंट्स मिल सकती है हियरिंग में, उसके अलावा उसके या उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी. सबसेक्शन 5 ऐसा बोलता है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है जब ऑर्डर इशू करेगा तो ही हैज टू इशू अ स्पीकिंग ऑर्डर. मीन्स ही नीड टू मेंशन ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड द बेसिस ऑफ हिज ऑर्डर, दैट हाउ और ऑन व्हाट बेसिस ही इज डिसाइडिंग इन फेवर और इन अगेंस्ट ऑफ द assessee. Now subsection 6 provides that the tax, interest and penalty demanded in the order, it should not exceed the amount specified in the notice. Means अगर आपका 1 करोड़ का नोटिस है, 1 करोड़ की टैक्स डिमांड है, तो 1 करोड़ 10 लाख का ऑर्डर नहीं हो सकता. इट कुड बी मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड और स्पेसिफाइड इन द शोकॉज नोटिस. एंड जो ग्राउंड्स हैं वो भी आप किसी और ग्राउंड पे, शोकॉज नोटिस में अगर ग्राउंड्स मेंशन नहीं है तो आप अपने ऑर्डर में वो ग्राउंड्स को लेके ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस कर सकते और प्रोवाइड कर सकते. सो क्लियर है सबसेक्शन 6 कि जो नोटिस आपको मिली है उसमें जो अमाउंट स्पेसिफाइड है उस अमाउंट से ज़्यादा का ऑर्डर आपको नहीं मिल सकता. और प्लस जो उस नोटिस में ग्राउंड्स स्पेसिफाइड हैं तो प्रॉपर ऑफिसर उन ग्राउंड्स के बाहर जाके किसी दूसरे ग्राउंड्स पे अपना ऑर्डर प्रोड्यूस या प्रोवाइड नहीं कर सकता, प्रोनाउंस नहीं कर सकता. सबसेक्शन 7 प्रोवाइड करता है जहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या कोर्ट कोई अमाउंट को अपील के ड्यूरेशन में मॉडिफाई कर देती है. चाहे टैक्स का अमाउंट है, आपका 1 करोड़ का था, अभी ट्रिब्यूनल में जाने के बाद वो 80 लाख हो गया, सो द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑल्सो विल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली. इसी तरीके से अगर ये बढ़ जाता है, 1 करोड़ से 80 लाख होने की जगह 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता है, देन द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल अगेन गेट मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली. सबसेक्शन 8 इट सेज दैट अगर शोकॉज नोटिस में इंटरेस्ट को डिमांड नहीं किया गया तो भी इंटरेस्ट इज टू बी पेड. लाइक शोकॉज नोटिस केवल बेसिक टैक्स का और पेनल्टी का इशू कर दिया तो आप तो कल होके बोलोगे कि नाउ सिंस यू हैव नॉट क्लेम्ड दैट द, बिकॉज अभी हम लोगों ने सबसेक्शन 6 में देखा कि जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड की गई उससे ज़्यादा की डिमांड का ऑर्डर नहीं हो सकता. तो फिर तो आप बोलोगे साहब मेरे से तो इंटरेस्ट मांगा ही नहीं है, तो वाई यू आर डिमांडिंग इंटरेस्ट. बट सबसेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट इवन इफ द इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑर्डर
which is determining the tax liability, then also you will have to pay the interest. अगर इंटरेस्ट ऑर्डर में नहीं भी स्पेसिफाई किया गया है तो भी आपको इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा. सबसेक्शन 9 बोलता है कि जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स है वो 3 साल का पीरियड या 7 साल 5 साल का पीरियड, 3 years और 5 years, विच इज स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ 51A और सबसेक्शन 7 ऑफ 51B. 51A में 3 साल, 51B में 5 साल. ये पीरियड अगर एक्सपायर हो गया तो जो आपका एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स है इट विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड, कि वो प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई है. एंड सबसेक्शन 10 प्रोवाइड्स फॉर कि जहाँ पे भी कोई अपील फाइल हुई है एक अथॉरिटी से दूसरी से तीसरी, तो वो ड्यूरेशन जो भी है अपील फाइल होने से या अपील हियरिंग से लेके कंक्लूजन तक का जो ड्यूरेशन है दैट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ 3 years और 5 years अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ A और B. राइट सर, दिस इज सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 51C. 10 सबसेक्शंस हैं. आई एम रिपीटिंग इन शॉर्ट वन बाई वन. सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे भी कोई ऑर्डर स्टे है या नोटिस का इशू स्टे हो गया है वो पीरियड आप 3 साल या 5 साल कैलकुलेट करने में एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. सबसेक्शन 2 बोलता है कि जहाँ पे भी अपीलेट अथॉरिटी को या ट्रिब्यूनल को या कोर्ट को ऐसा लगता है कि शोकॉज नोटिस जो 51B में सबसेक्शन 1 और 2 में दिया गया है वो प्रॉपर नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर 3 साल के लिए टैक्स डिटरमाइन कर सकता है 50 और 51A सबसेक्शन 1 में या 51A सबसेक्शन 2 में वो नोटिस इशू हुआ है ऐसा माना जाएगा. सबसेक्शन 3 अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग अगर असेसी ने मांगी है तो उसको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एटलीस्ट अगर ऑर्डर उसके अगेंस्ट में है तब तो 100% प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सबसेक्शन 4 अगर कोई सफिशिएंट कॉजेज हैं और रीजंस हैं तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपको एडजोर्नमेंट दे सकता है और 3 बार से ज़्यादा आपको एडजोर्नमेंट नहीं मिलेगी. सबसेक्शन 5 बोलता है कि जो ऑर्डर है प्रॉपर ऑफिसर का इट शुड स्टेट ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स वेरी क्लियरली एंड द रीजन और द बेसिस ऑफ हिज डिसीजन, कि वो जो डिसीजन ले रहा है उसका बेसिस क्या है या उसके पीछे का रीजन क्या है. सबसेक्शन 6 बोलता है कि जो अमाउंट टैक्स का, इंटरेस्ट का और पेनल्टी का शोकॉज नोटिस में स्पेसिफाइड है उससे ज़्यादा की डिमांड का ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर इशू नहीं कर सकता. सबसेक्शन 7 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे भी अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने कोई अमाउंट को मॉडिफाई किया टैक्स की अमाउंट को, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी भी मॉडिफाई हो जाएगा. सबसेक्शन 8 अगर ऑर्डर में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो भी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. इंटरेस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड. सबसेक्शन 9 जो 3 साल या 5 साल का पीरियड कैलकुलेट करना है वो एक्सपायर हो जाए तो प्रोसीडिंग्स जो है वो कंक्लूडेड मानी जाएगी. सबसेक्शन 10 जहाँ पे भी अपीलेट प्रोसीडिंग्स चालू है तो अपीलेट प्रोसीडिंग्स की ड्यूरेशन विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 3 years और 5 years अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ 51A और 51B. So sir, this was 51C pertaining to the general provisions relating to demand of tax. Now let us move to section 51D. 51D provides for that the provisions of A, B and C shall apply mutatis mutandis to the recovery of interest where interest payable has not been paid or part paid or erroneously refunded. Means पार्ट ए जिसमें हमने सीखा कि फ्रॉड नहीं है तो कैसे डिमांड रेज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ऑर्डर इशू करेंगे. पार्ट बी अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है तो कैसे ऑर्डर इशू करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, और पार्ट सी की जनरल प्रोविजंस क्या हैं. ये तीनों ही पार्ट्स एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ इंटरेस्ट. अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया या शॉर्ट पेमेंट किया या गलत रिफंड ले लिया इंटरेस्ट का तो वहाँ पे 51A, 51B और 51C will be applicable as it is. So my dear friends, this is what we have discussed about the provisions of demand and recovery under the model GST law, and I think we should stop our discussion for the day here only. So this is the time
when this part should end. With certain other provisions and the discussion thereon, we will come out with the subsequent parts of knowledge series on model GST law. For the time being, I would simply like to thank each one of you for giving me the patience hearing and the opportunity of sharing whatever I have gone through or read in the model GST law. I am very happy with the suggestions I am receiving on a regular basis, as well as the appraisal or praise I am receiving from you members or the participants. That gives me much more motivation to come out with more and more such parts and to discuss more and more about the model GST law. So my dear friends, this is the time to say goodbye for the time being. Thank you very much.